Hello 11th class political science students. Hope you all are doing great. Today we are going to do part 3rd of the chapter Rights in Indian Constitution. In last class we have understood the situation of South Africa. We have understood their Bill of Rights. Along with that we have tried to understand that what were the basic difference between the Bill of Rights that are existing in South Africa and in Indian context. I hope all of these things were clear to you. And from today's class, what we are going to study, we will study those rights which are described or mentioned as fundamental rights in Indian Constitution. So today, formally we will discuss all those fundamental rights which you are having for being a citizen of the country. So let us start now. First is right to equality. अब देखो यहाँ पे क्या मेंशन है directly rights are not explained on this page. What is mentioned? Here are two imaginary stories. But these stories can convert into reality also in the society. But you will have to read this imaginary story and you will have to tell कि ये जो story है if they are violating of fundamental rights, if they are violating any of the fundamental rights according to your opinion. So let us start now. First story is of Swadesh Kumar. Swadesh Kumar is a person who was trying to visit in his village and he visited, but he is accomplished by his friend. अब उसके साथ उसका फ्रेंड्स भी हैं, मतलब उसका एक फ्रेंड भी है. They decided to have a cup of tea at the village roadside hotel. और उन्होंने क्या सोचा, मतलब वो फ्रेंड्स हैं तो they thought that let us have a cup of tea. After that, what happened? Problem यहाँ से शुरू हुई. The shopkeeper knew Swadesh Kumar but asked the name of his friend to know his caste. अब जो शॉपकीपर है उसको स्वदेश कुमार की कास्ट का तो पता है, but he was not aware about the caste of the friends of स्वदेश कुमार. इसीलिए उसने अब देखो क्या किया, इसीलिए because he was not able to ask his caste directly, what did he do? That's why he tried to ask his name. He tried to know his name with the help of स्वदेश कुमार. उसने क्या पूछा, स्वदेश कुमार से उसके फ्रेंड के बारे में पूछा, उसका नेम पूछा, so that he can have an estimate, he can have an idea regarding his caste. And after that, what happened? After this, the shopkeeper served tea to Swadesh Kumar in a nice mug, while his friend was given tea in a earthen cup because of he was a Dalit. अब जब उसने नेम्स पता कर लिए, तब उसने क्या किया, स्वदेश कुमार को तो बड़े अच्छे से मग में चाय दे दी, because he was from, you can say, that community which is considered superior, right? But his friend was served tea in a earthen cup, and the reason behind it that he belonged from a Dalit community. Understood? और ये चीजें आज भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में विजिबल होती हैं कि आज भी कहीं ना कहीं ये चीजें एग्जिस्ट. जो अनटचेबिलिटी का जो कंटेक्स्ट है ना, जो अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग बोलते कि वो हमारी सोसाइटी से खत्म हो गया, बट नाउ ऑल्सो इट इज एग्जिस्टिंग इन द माइंड्स ऑफ द पीपल. अब second situation is that an order is served to 4 news readers of a television channel that they would not longer read the news on screen. अब जो सेकंड ऑर्डर है वो किसके रिगार्डिंग है? उन लोगों के रिगार्डिंग है जो न्यूज रीड करते हैं, एंकर्स बोल सकते हो जिनको आप. और उनको क्या बोला गया, दैट दे वुड नॉट लॉन्गर रीड द न्यूज ऑन स्क्रीन, कि वो अब स्क्रीन पे न्यूज नहीं पढ़ेंगे. दे, अब देखो प्रॉब्लम कहाँ है, दे ऑल आर विमेन. प्रॉब्लम ये है कि जो जिनको ऑर्डर दिया गया है, दे ऑल आर विमेन ओनली. द रीजन गिवन इज दैट दे आर अबव द एज ऑफ 45. और रीजन क्या दिया गया कि इनकी एज ना 45 से अबव हो गई है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट दे विल नॉट रीड द न्यूज ऑन स्क्रीन. बट ये भी चलो, उसके बाद प्रॉब्लम, जो बेसिक प्रॉब्लम क्या है, 2 male news readers about the same age are not barred from presenting the news.
अब फीमेल्स को तो बोल दिया कि आपकी एज 45 से अबव है, दैट्स व्हाई यू विल नॉट बी रीडिंग द न्यूज, बट मेल को क्यों नहीं बोला? मेल आर ऑल्सो above the age of 45, but even then they were continuously reading the news. So are you able to think? Do you agree कि कहीं ना कहीं इनके राइट्स का वियोलेशन हो रहा है? And it is clearly visible from these two examples. And this thing happens in the society also. Got it? I hope with the help of these example you are able to understand. First जो statement है that is related to the social discrimination on the behalf of the caste of any individual. And second example that is given to you, that is an example of gender discrimination, gender based discrimination, because women were denied to continue their job because of their age factor. But only why? Only women were Why only women were denied from that particular job? Or you can say from why they were denied to read the news. This is showing the example of gender discrimination. I hope it is clear to you. अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो राइट्स कौन कौन से हैं? तो यहां से एमसीक्यू तो आपको क्या याद रखना है? दिस यू विल हैव टू लर्न। पार्ट थर्ड आपको क्या याद रखना है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता होना चाहिए देयर आर 12 शेड्यूल एंड 24 पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उन 24 पार्ट्स में से जो पार्ट थर्ड है वो डील करता है फंडामेंटल राइट्स के साथ। गॉट इट? और जो अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स 12 टू 35 बेसिकली वी कंसीडर कि आपके फंडामेंटल राइट से कनेक्टेड हैं, डील करते हैं। अब नेम आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से राइट्स आपको गिवन है। अब देखो, फर्स्ट राइट टू इक्वालिटी, सेकंड राइट टू फ्रीडम, आफ्टर दैट थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फोर्थ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड सिक्स्थ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब यहां पे अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग वाले से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो राइट टू इक्वालिटी मतलब नाम से ही पता चल रहा है ना, इट मीन्स दिस फंडामेंटल राइट says that all person are equal, there will be no any kind of discrimination on any of the basis। अब देखो यहाँ पे क्या है, इक्वल, यहाँ पे अगर आप इसको स्टडी करोगे तो इसी के अंदर ना आपको आर्टिकल बेसिकली 14 टू 18 में सारी चीजें मिलती हैं। 14, 15, 16, 17 एंड 18 इन वाले राइट्स में आपको सारी चीजें मिलती हैं। अब देखो आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। इट मीन्स क्या है कि हमारी कंट्री के लॉ सभी को इक्वली प्रोटेक्ट करेंगे और लॉ के अकॉर्डिंग सभी इक्वल है, मतलब एवरी पर्सन विल बी ट्रीटेड इक्वली। गॉट इट? और अगर कंट्री में कुछ प्रॉब्लम है तो एवरी पर्सन विल बी प्रोटेक्टेड इक्वली बाय द लॉ। ठीक है, मतलब कानून के आगे सब बराबर है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि हमारे कानून का सिंबल भी क्या है कि हमने आंख पर पट्टी बांधी। इसका मतलब ये नहीं कि कानून अंधा है, इसका मतलब ये है कि कानून सभी को इक्वली ट्रीट करता है। गॉट इट? ऑल आर इक्वल। उसके बाद जो आर्टिकल 15 है दैट डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बेसिकली कि आप किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं सकते किसी भी पर्सन के साथ। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी बेस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो इट मीन्स इट, you can say it states or it prohibits that discrimination. After that, article 16, what does it say? Equality of opportunity in public employment. Employment मतलब अगर जॉब से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसमें सभी को क्या मिलेगी? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके बाद ये वाला राइट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सिन, पाप की तरह वर्क कर रही थी, दैट हैज बीन अबॉलिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। और उसके बाद क्या है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, दैट इज आर्टिकल 18। वो क्या बोलता है कि हमारी कंट्री में जो टाइटल्स है ना, पहले देखो आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे किसी को नाइटहुड का टाइटल मिल गया है ना, तो ये सारी चीजें क्या थी? ये सारी चीजें टाइटल्स। जैसे राजा राम मोहन रॉय, उनका नाम था राम मोहन,
राजा का टाइटल मिला हुआ था, रॉय का टाइटल मिला हुआ था। तो इट मीन्स अब क्या कर दिया हमने, ये सारे के सारे टाइटल्स हमने अबॉलिश कर दिए। अब अगर कोई आपको और कंट्री की अथॉरिटी आपको टाइटल देती है तो वो टाइटल एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। हाँ, अब देखो लेकिन क्या हो सकता है, जैसे किसी पर्सन को ये प्राइज मिला है, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, तो उनके नाम के आगे वो लग सकता है। क्यों? बिकॉज दैट इज अ प्राइज, दैट नॉट अ टाइटल। आई थिंक राइट टू इक्वालिटी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखो राइट टू फ्रीडम, ये बेसिकली क्या होता है? राइट टू फ्रीडम, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। अब आपको ना जो ये है आपका आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक बेसिकली। तो इसमें क्या होता है, आपको आर्टिकल 19 के अंडर ही आपको ना 6 टाइप की फ्रीडम दे दी जाती है। और वो फ्रीडम कौन कौन सी? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप अपने स्पीच को, आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हो। असेंबल पीसफुली, आप पीसफुली एक प्लेस पे गैदर भी हो सकते हो। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप इंडिया की पूरी टेरिटरी में फ्रीली मूव कर सकते हो, है ना। उसके बाद रिसाइड इन सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, आप क्या कर सकते हो, कंट्री के किसी भी पार्ट में सिर्फ मूव नहीं कर सकते बल्कि यू कैन सेटल डाउन देयर ऑल्सो। बिफोर 2019 जम्मू कश्मीर वॉज द एक्सेप्शन, लेकिन जब से आर्टिकल 370 रिमूव हुआ, वी आर एबल टू रिसाइड इन जम्मू कश्मीर ऑल्सो। उसके बाद practice any profession or to carry of any occupation, trade or business। अब यहाँ पे क्या है कि आप अपना कोई भी ऑक्यूपेशन एक्सेप्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे भी हमने पढ़ा था ना कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। तो क्यों एब्सोल्यूट नहीं है? यहाँ पर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं एक्सेप्ट कर सकते ऑक्यूपेशन में। मतलब जैसे इंसानों को पहले खरीदा बेचा जाता था, स्लेवरी सिस्टम जब होता था ना, तो ह्यूमन बींग्स वर ट्रीटेड जस्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट ओनली, बट नाउ इट इज प्रोहिबिटेड। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब उसके बाद फिर क्या है, 19 में तो आपको फ्रीडम दे दी गई। उसके बाद जो आपका आर्टिकल 20 है वो क्या बोलता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। यानी बेसिकली अगर कोई क्राइम हो जाता है, अगर किसी पर्सन के ऊपर कहीं ना कहीं सस्पेक्शन है कि ये पर्सन कल्प्रिट हो सकता है, तो उन लोगों के कहीं ना कहीं राइट्स इसमें गिवन है। गॉट इट? जैसे अगर किसी ने क्राइम किया तो एक क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी। गॉट इट? उसके बाद अगर कोई, जैसे मान लिया फीमेल्स के रिगार्डिंग कुछ रूल्स रेगुलेशन है कि अगर फीमेल को अरेस्ट करोगे तो क्या होगा, फीमेल को अरेस्ट करोगे तो एक फीमेल आपको पुलिस कांस्टेबल चाहिए होती है। दैट काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन आर मेंशन्ड हियर। अब ये वाला जो राइट है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट। अब ये क्या है? ये वाला राइट है आपका आर्टिकल 21। अब ये क्या है आपका? राइट टू लाइफ। अब आर्टिकल ये क्या कहता है कि राइट टू लाइफ मतलब इंसान के पास, इंडियन सिटीजन के पास पूरा राइट है कि वो अपनी लाइफ को एक डिग्निफाइड वे में कहीं ना कहीं मतलब कंप्लीट कर सके अपनी लाइफ को। ठीक है? और आप लोग देखो हमने क्या पढ़ा था, एब्सोल्यूट नहीं है फंडामेंटल राइट्स, है ना। अब देखो क्या होता है, जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है ना, वो सारी चीजें भी, इमरजेंसी लगती कैसे है, क्या होती है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इसी बुक में। बट आप ये समझ लो अभी के लिए कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपके राइट्स को कहीं ना कहीं सस्पेंड कर सकती है गवर्नमेंट, अगर सिचुएशन क्रिटिकल ज्यादा है तो। लेकिन राइट टू लाइफ आपका तभी भी वर्क करता है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपका देखो राइट टू एजुकेशन, इसी के सब पार्ट में हमने मेंशन किया है आर्टिकल 21 के अंडर ही। और उसके बाद आपका आ जाता है आर्टिकल 22 जो क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अब देखो डिटेंशन क्या होता है, यानी आप किसी को देखो जैसे नजरबंद करके रख लेते हैं, आपने उसको प्रेजेंट ही नहीं किया कोर्ट के सामने, दैट कैन नॉट हैपन, है ना। जो हमने केस में पढ़ा था कि एक पर्सन को 54 ईयर की एज तक, आसाम के एक रेजिडेंट को 54 ईयर तक उसको क्या रखा, जुडिशियल कस्टडी में रखा। वो ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या करना पड़ता है, जैसे ही कोई पर्सन अरेस्ट हुआ, अगर अरेस्ट भी हुआ तो उसके भी राइट्स हैं। जैसे अगर अरेस्ट वारंट नहीं है तो किसी को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। गॉट इट? देयर आर सम काइंड ऑफ राइट्स, सम काइंड ऑफ प्रोविजन रिगार्डिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन of any citizen of India.
सो दिस इज योर राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट अब देखो, ये है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सब में लिखा हो राइट टू, राइट टू, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, बट यहाँ पे लिखा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि आपका अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन करता है तो उसके अगेंस्ट में ये राइट आपको प्रोवाइड है। अब देखो कैसे, इसमें क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। अब इसमें क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती, जिसको मानव तस्करी बोलते हैं, यानी जब इंसानों को एज एन ऑब्जेक्ट खरीदा बेचा जा सकता है, वो नहीं हो सकती। एंड फोर्स लेबर, जो आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी थी, है ना, पढ़ी थी ना बिल्कुल स्टार्टिंग में चैप्टर के, दैट दे वर फोर्स्ड टू डू वर्क ऑन लो वेजेस बिकॉज दे वर पुअर पीपल, दे वर नॉट अवेयर अबाउट देयर राइट्स, दैट्स व्हाई दे हैड डन दैट वर्क। बट वी कांट डू दैट कि आप किसी से फोर्स लेबर करवाओ या फिर बेगार करवाओ। बेगार वॉज वर्क विदाउट सैलरी। सेकेंड इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजर्ड्स जॉब। अब देखो कई बार क्या होता है कि हम छोटे छोटे बच्चों को, आप लोगों ने देखा होगा होटल्स रेस्टोरेंट्स में भी लगा देते हैं, इलीगल वर्क है वो, क्योंकि 14 ईयर तक की एज के किसी भी बच्चे को आप क्या वर्क पे लगा ही नहीं सकते, बिकॉज दैट इज हिज और हर एज टू स्टडी ओनली। And that's why our government has initiated a scheme that is सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलती है। इसीलिए हमने क्या किया कि अगर कोई बच्चा है तो आप उसको ऐसी जॉब्स में एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे जिससे उसकी हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपने उसको माइनिंग में लगा दिया, जैसे हम कोल निकालते हैं ना, तो माइनिंग में अगर लगा दिया, दैट इज नॉट परमिटेड, दैट इज अ क्राइम, यू कैन से। Got it? So basically this is article 23 and 24 of Indian Constitution. अब आ जाओ, हम देखो बोलते हैं ना दैट इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, या फिर आपसे पूछा जाता है जस्टिफाई दैट इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, तो उसका आंसर है क्यों आप इंडिया को सेक्युलर बोलते हो। पहली बात तो सेक्युलर होता क्या है, जिसमें रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। सो यहाँ पे क्या है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। अब ये आपका आर्टिकल बेसिकली याद रखना 25 to 28 है। इसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। इसमें आपकी मर्जी है, आप किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट करें, उसको प्रमोट करें, उसकी प्रैक्टिस करें। देयर इज नो बाउंडेशन फ्रॉम द साइड ऑफ द स्टेट। मतलब आप फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो किसी भी रिलीजन को मानने के लिए, ठीक है, स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। उसके बाद फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आपके रिलीजियस अफेयर्स कि आपके रिलीजन में कब क्या होना है, स्टेट को उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो आप क्या कर सकते हो, जैसे हम क्या कर सकते हैं, हम डोनेशन कलेक्ट करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हमें टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाना है, तो हम क्या कर लेते हैं, विलेज कम्युनिटी से, टाउन से हम मनी कलेक्ट कर लेते हैं। सो स्टेट डू नॉट से एनीथिंग इन दैट, and state cannot say anything because it's our fundamental right. Got it? उसके बाद है freedom to pay taxes for promotion of any particular religion. उसके बाद क्या है, अगर आप इसका मतलब क्या होता है कि आपको टैक्स भी नहीं देना है। जो आपकी मनी कलेक्ट होती है ना, जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा टेम्पल है जिसमें क्या हो गया, बहुत ज्यादा डोनेशन इकट्ठा होता है, तो उस पर टैक्स नहीं होता है उस मनी के ऊपर कभी भी, ठीक है। और आप उस मनी को क्या कर सकते हो, यू कैन यूज दैट मनी फॉर द प्रमोशन ऑफ योर पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब दैट मनी इज आउट ऑफ द टैक्सेशन एरिया। गॉट इट? उसके बाद जो 28 है वो क्या बोलता है, फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन टू वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और देखो पहले के, अगर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने अगर पुराने सीरियल्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या होता था पहले, कहीं ना कहीं में रिलीजियस एजुकेशन दी जाती थी। बट और जो मुस्लिम लोग थे, हिंदुओं को क्या दी जाती थी कि हमें हमारे वेद शास्त्र ये पढ़ा दिए जाते थे। मुस्लिम दे हैड टू रीड देयर कुरान एंड ऑल देयर रिलीजियस एस्पेक्ट्स। बट यहाँ पे क्या हुआ कि हमने वो सारी चीजों को क्या कर दिया कि अब उस एजुकेशन को प्रोहिबिट कर दिया गया कि आप देखो क्या करोगे, आप अपनी वर्शिप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपने अकॉर्डिंग तो आप क्या कर सकते हो,
आप कर सकते हो कि आप अटेंड करो, जब मर्जी जैसे चाहे अटेंड करो, लेकिन आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कोई ऐसी एजुकेशन नहीं दोगे जो पर्टिकुलर किसी रिलीजन के ऊपर फोकस होती है। गॉट इट? इट मीन्स आप अपने अकॉर्डिंग वर्शिप करो, आप अपने अकॉर्डिंग अपने रिलीजन को प्रमोट करो। स्टेट इंटरफेयर नहीं करता, स्टेट आपके ऊपर कोई रिलीजन इंपोज नहीं करता कि आपको यही रिलीजन मानना है। दैट्स व्हाई वी कंसीडर दैट इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। उसके बाद आर्टिकल 20, आफ्टर दैट आर्टिकल 29 एंड 30, दिस इज रिलेटेड टू कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। अब इसमें क्या है, बेसिकली दिस वर्क्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चर लैंग्वेज ऑफ द पीपल। अब इसमें देखो आर्टिकल 29 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। अब देखो जैसे मतलब ट्राइबल पीपल है, उनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, वो हमारे पास ज्यादातर वैसे भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो लोग अपना रिकॉर्ड्स रखने में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते। और ऑन दी नेम ऑफ द एडवांसमेंट हम कहीं ना कहीं उनके रिलीजन को खत्म भी करते जाते हैं। तो ये जो राइट है आर्टिकल 29, ये उनकी लैंग्वेज को, उनके कल्चर को, माइनॉरिटीज के कल्चर को प्रोटेक्ट करने की गारंटी देता है। एंड द सेम इन आर्टिकल 30, राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब अगर वो अपने कल्चर को, अपने जो उनका सिस्टम है, जो उनके ट्रेडिशन है, अगर वो उनको प्रमोट करना चाहते हैं, सो दे कैन डू इट विद देयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। दे आर फ्री फ्रॉम द साइड ऑफ स्टेट। Got it? It means here the state works for the protection of the rights of minorities. Hope it is also clear to all of you. Next is right to constitutional remedies. अब देखो ये वाला राइट जो है ना, इसको बोला जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कहीं ना कहीं स्पिरिट, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि देखो ये वाले जो राइट्स है ना आपके सारे के सारे, ये तब वर्क करते हैं जब आपके पास ये राइट हो। एंड व्हाई इज इट सो मच इंपॉर्टेंट? क्योंकि दिस राइट प्रोवाइड्स यू एंड गिव्स यू अथॉरिटी टू मूव इन द शेल्टर ऑफ द कोर्ट्स। राइट? अगर आपके राइट्स को कोई एक्सप्लॉइट करे तो यही वो राइट है जो आपको फ्रीडम देता है कि आप कोर्ट में जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, आप जुडिशरी के पास जा सकते हो फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ योर राइट्स। And keep in your mind, this is Article 32. Here I told you Article 29 and 30. Article 31, that used to be a fundamental right, that was right to property. But with the help of constitutional amendment, we have put it in the category of legal rights only. Got it? That's not a fundamental right now. And this article, right to constitutional remedy, that is Article 32. And lot of the philosophers, lot of the thinkers consider right to constitutional remedy as the soul of Indian constitution. Got it? Hope you are able to understand the major features of Indian constitution and what are their description. You are also able to understand that thing. Got it? So these fundamental rights, which are 6 in number, these are guaranteed by the Indian Constitution. I hope till here everything is clear to all of you. And next part we will do in next video. Till then, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.